मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एनहांस करती हैं, इसलिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया था? I said do not use the word alteration, because the alteration can be on either side, on the plus side and the minus side. But what term we had used last time? आवाज नहीं है आपकी, किसी ने माइक ऑन किया, but I couldn't hear. Some modulation. Modulation, right. तो आप लोगों ने कुछ और देखने की कोशिश की? लास्ट टाइम आई हैड रिक्वेस्टेड कि भाई आप लोग जरा जाके प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ जानने की कोशिश करना। तो कुछ डिड यू गो थ्रू some content somewhere Yes, on internet or on some? Okay, what did you go through, like so what certain exactly you have physical found? properties and chemical properties of enzymes, Mm-hmm. in which first I read about the physical properties in that first it is related to temperature. Mm-hmm. At a temperature around 60 degrees Celsius, enzyme Okay. deactivate. मैडम मैं So क्लास they में हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, क्लास में हूँ। ओके मैम। सॉरी बेटा, बोलो बोलो। हाँ। So enzymes are denatured at high temperature. So Okay. Mm-hmm. there is an optimum temperature range up to which the enzymatic activity can be seen. Then enzymes also show a specific activity at a specific pH. Okay. Mm-hmm. They are soluble in alcohol, water, and NaCl and glycerol. These kind of substances. Okay. Uh, and the action of enzyme also depends on the concentration of the substrate that we are using, Okay. and Mm-hmm. they are precipitated in high alkaline and highly alkaline and acidic solutions. Mm-hmm. Then Good. in Very good. chemical part, they have high catalytic efficiency, and second is they are highly specific. So a certain kind of enzyme specifically catalyzes a kind of reaction, Mm-hmm. uh, and uh, and they work best at an optimum temperature, usually 37 degrees Celsius, and an optimum pH that is 7.2. So I read this much. Okay. So, why do you think that there is an optimum temperature of 37 degrees and the optimum pH of 7.2? Most of the metabolic reactions in our body take place at this temperature. Okay, most of the reactions take place at 37. Why? Because we are warm-blooded animals, and we have a constant temperature of body that is 37. That's why we find the maximum or whatever. Because we need to, conduct all the metabolic activities smoothly and the reaction goes smoothly at 37, as you have said. That's why we maintain the temperature of our body as 37, or it's the other way around. Like our body temperature is at 37, that's why the enzymes act maximum at 37. What do you think? In order to uh, um, in order to make enzymes work properly, we maintain our body temperature. Yeah. So it's like that we have been evolved. Earlier, in evolution path, you would find they were cold-blooded animals, and then the warm-blooded animals evolved. So the cold-blooded animals have their body temperature varies with the environmental temperature, but in warm-blooded animals, the temperature is maintained at particular degrees, so that the metabolic processes can be smoothly conducted. The smooth conduction of metabolic processes, we need a constant temperature. Why? Because the enzymes and the reactions and the metabolic processes, they are carried out at 37 degrees with an optimum efficiency, like the maximum or optimum, whatever you got.
That's an optimum temperature at which the maximum efficiency of the reactants or the metabolic processes is, spotted. So that way, like as I asked, either that way the enzymes have adjusted to the temperature at which we maintain, or we have adjusted ourselves to maintain that temperature at which the enzymes perform well or efficiently. So it's the other way around. We have evolved ourselves to maintain a temperature at which the maximum output of an enzyme's efficiency or potency can be achieved. Well, and one more thing, you said it can be miscible in many of the solvents, like पानी में भी डिजोल्व होता है, अल्कोहल है और दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी हैं जिसमें एंजाइम डिजोल्व होते हैं यूजुअली. तो एंजाइम्स जो हैं वो प्राइमरली प्रोटीनेशियस हैं, जैसे कि आप लास्ट टाइम ही हम बात कर रहे थे. प्रोटीन से मतलब क्या है? ये दे आर कंपोज्ड ऑफ amino acids. A chain of amino acids. Yeah, amino acids. So they are comprised of amino acid chain. So amino acid क्या होता है? एक मोनोमरिक यूनिट है प्रोटीन का, और इसके बेसिस पे शायद हम जानते हैं, आप सभी जानते हैं, इसके बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. जैसे हम पेप्टाइड्स बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, एंड देन वी कॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहते हैं. तो यानी कि जब इनके नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो अटैच रहते हैं, या फिर द चेन of amino acids which contain a specific number or a range of number of amino acids, then we categorize them in different classified sectors, categories. So जैसे कि सिर्फ दो हैं तो हम कहते हैं कि वो एक पेप्टाइड है ना, या क्या कहते हैं? आपको मालूम है कि सिर्फ दो ही अमीनो एसिड साथ में रहें तो आप उसको क्या कहते हैं? किसी को मालूम है? कई पेप्टाइड. और कोई वर्ड मालूम है आपको? यूजुअली उनको पेप्टोन्स कहा जाता है. वो अभी कॉलोकियल यूज हो गया. कॉलोकियल यूज मतलब पहले यूज करते थे, आजकल यूज नहीं करते. 20 अमीनो एसिड्स तक का चेन रहा तो हम उनको पेप्टाइड्स बोलते हैं. 20 से 200 अमीनो एसिड्स का चेन रहा था हम उनको पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं. एंड 200 के ऊपर अमीनो एसिड्स का चेन रहा था हम उनको प्रोटीन्स बोलते हैं. ठीक है. तो अब यूजुअली देखा यह गया कि सभी एंजाइम्स प्राइमरीली यानी कि प्रेडोमिनेंटली प्रोटीनेशियस ही हैं. और आपको मालूम होगा कि जो चार्ज जो है एक अमीनो एसिड पे, चार्ज क्या होता है आपको मालूम है? द आयोनिक बैलेंस जो है वो हमेशा नलिफाई किया हुआ होता है अमीनो एसिड में. कैसे? NH3 positive and CO negative, the positive charge on the amino group and negative charge on the carboxylic acid. तो यूजुअली वो ऐसे आयंस को क्या बोलते हैं? कि जैसे एक कोई यूनिट है जिसपे पॉजिटिव आयन चार्ज भी है और नेगेटिव Zwitter ionic form. Zwitter आयंस कहते हैं हम इनको. एंड जब पॉली अमीनो एसिड्स यानी कि अमीनो एसिड्स के जब चेन फॉर्म होते हैं तो विद द अटैचमेंट ऑफ अमाइड्स या फिर पेप्टाइड बॉन्ड, जो पेप्टोन बॉन्ड जो बनता है, उसके कारण CONH वाला जो बॉन्ड फॉर्म होता है. CONH वाला बॉन्ड एमाइड वाला बॉन्ड भी है. MID कहते हैं CONH. थोड़ी सी केमिस्ट्री याद करनी पड़ेगी आपको. तो वो जो CONH बॉन्ड फॉर्म होता है उस समय क्या होगा कि CO डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ से NH3, उसमें से NH2, 3 में से एक अटैच रहेगा मॉलिक्यूल से, तो वो H2O बाहर निकल जाता है. तो CONH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. तो ये जो पेप्टोन बॉन्ड है या फिर अमाइड बॉन्ड जो है, CONH बॉन्ड जो है, ये डिटरमाइन करता है कि कितने H और OH बाहर निकल चुके हैं. तो इसके बेसिस पे वो कैसे अटैच हो रहे हैं दूसरे से, उनके अपने खुद के चार्जेस डेवलप होते हैं. दो द एवरी अमीनो एसिड इज चार्ज जो है बैलेंस होना शुरू हो जाता है, या फिर किसी किसी में ज्यादा है किसी किसी में कम है. एज पर पोटेंशियलिटी वो डिफर करते हैं. एंड इसको हम
हर अमीनो एसिड के लिए ये सब चीज़ें कैलकुलेटेड है और कैलकुलेट करके एक स्पेसिफिक टैबुलेशन में रखा गया है। एंड यदि आप लोग यदि सुने होंगे या जानते होंगे, तो जब हम प्रोटीन को आइसोलेट करते हैं या फिर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हम इनको हर अमीनो एसिड को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, और हर अमीनो एसिड को हम चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? लाइक ऑन द बेसिस ऑफ बहुत सारे मेथड्स हैं, और उसमें से एक जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसके थ्रू हम यूजुअली हर अमीनो एसिड को ब्रेक करते हैं और उसको फिर एक दूसरे सेंसर की तरफ हम उसको अट्रैक्ट करवाते हैं और वो सेंसर को रीड करता जाता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं। नॉट एग्जैक्टली द मॉलिक्यूलर formula, but on the basis of the charge it attains, on the basis of the time it takes to travel a distance, or sometimes on the basis of time or the angle of reflection it creates या produces when it is reflected from some surface। तो ये अलग अलग तरीके हैं। अब देखा गया है कि मान लीजिए हम ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स को हम यदि पानी में मिलाएंगे, यदि हम किसी मिसिबल सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, तो वो यूजुअली क्या होता है, आपने शायद पढ़ा होगा कि वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। कोलाइडल सॉल्यूशन आप लोग को मालूम है? A solution that contains insoluble particles, but those insoluble particles are not visible through eye. थ्रू आई मतलब उसका एक रेंज है, इस रेंज में ही यदि वो पार्टिकल साइज रहा तो हम उनको कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। वो पूरी तरह मिक्स नहीं होते हैं। अब कोलाइडल सॉल्यूशन की अपनी एक प्रॉपर्टी है, जैसे वो इसमें से सॉल्यूशन में से यदि हमने लाइट पास किया तो वो क्या होता है? Scattering. Scatter. या उसको कुछ कहते हैं, उस इफेक्ट को Tyndall effect. टिंडल इफेक्ट, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, ये यूजुअली हमारे जितने भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो एग्जिबिट करते हैं ये सब प्रॉपर्टीज ऑन डिफरेंट स्केल, ऑन डिफरेंट मैग्नीट्यूड। रही बात एक बहुत पहले किसी ने कहा था कि लॉक एंड की मेथड एक है जिससे कोई भी दो मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं इन बॉडी, इन ऑर्गेनिज्म, इन बायोलॉजिकल सिस्टम। किसने कहा था? आप लोग देखिएगा कि लॉक एंड की मेथड किसने बताया। तो लॉक एंड की मतलब सीधे से बात है, हर लॉक के लिए एक चाबी है, मतलब एक चाबी से ही वो खुलेगा। उसी प्रकार से हर मॉलिक्यूल का किसी दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन जो है दैट्स वेरी स्पेसिफिक, अदरवाइज वो इंटरेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। तो दे मे कम क्लोज बट दे मे नॉट इंटरैक्ट जस्ट बिकॉज दे आर नॉट फिटिंग इनटू ईच अदर्स शेप और साइज, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन हर मॉलिक्यूल का, क्योंकि उसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो इनके प्रेजेंस में और अमीनो एसिड जब फॉर्म होता है तो वो अपना एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन कैरी करता है, यानी कि एक प्रकार का शेप और साइज कैरी करता है। जो लाइन से ऐसे जब ढेर सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो इट विल क्रिएट एक अजीब सा एक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट होगा, एक अजीब सा शेप क्रिएट होगा, जिसके कारण अभी कई बार ऐसा होता है कि हम डाइसल्फाइड लिंकेजेस भी होते हैं। सल्फाइड कहाँ से आया? जब ओ मॉलिक्यूल जो है अमीनो एसिड्स में किसी किसी ओ की जगह सल्फर से रिप्लेस्ड हुए मॉलिक्यूल्स भी हैं, आइसोल्यूसिन और सिस्टीन ऐसे कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिसमें ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज हुआ रहता है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं, तो ये जब नजदीक आते हैं तो दे यूजुअली डाइसल्फाइड लिंकेजेस फॉर्म कर लेते हैं। तो डाइसल्फाइड लिंकेजेस फॉर्म करेंगे तो उनमें यूजुअली सपोज एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड जुड़ता चला जाए तो लाइन से एक चेन बनती जाएंगी। बट व्हेन दीस टू सल्फर कंटेनिंग यूजुअली when these sulfur containing amino acids come together they form a disulfide linkage। तो ऐसे इसके कारण क्या होता है? प्लीट्स आने शुरू हो जाती है, यानी फोल्ड्स आने शुरू हो जाते हैं चेन में। यहाँ पे सपोज यहाँ मेरे नाक के पास एक अमीनो एसिड है और ये इधर दूसरा ये राइट हैंड में जो मैं उंगली दिखा रहा हूँ ये वाला, इधर पे एक अमीनो एसिड है जो दोनों सल्फर कंटेनिंग है। तो ये इनकेस ये दोनों नजदीक आए तो हो सकता है कि यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेज फॉर्म हो जाए। तो ये ऐसा लूप बन सकता है, कभी कभी लूप्स बनते हैं, कभी कभी प्लीट्स बनते हैं। लूप्स जब बनते हैं जब वो बहुत दूर होके साथ में जुड़ते हैं तो लूप बनेंगे, बहुत नजदीक में ही वो बॉन्डिंग हो जाती है डाइसल्फाइड लिंकेज तो वो प्लीट्स कहलाते हैं।
और वैसे ही आप लोगों ने देखा कुछ हेलिकल स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं, कर्ली स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हेलिक्स भी हो सकता है, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कभी कभी सर्कुलर बन जाते हैं, कभी बड़ी ओवल शेप के लूप्स बनती हैं। तो डिफरेंट शेप्स कैन बी formed when these molecules, these amino acids, when they get into chain and when they get into in the near vicinity, वो जो bonding जो है chemistry है वो सब तो ऐसे वो देन हम ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं कि वो अपने एक टर्शियरी स्टेट में है, जब वो एक स्टेबल शेप एंड साइज को अचीव कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि वो टर्शियरी स्टेट में है। या फिर अलग अलग डेफिनेशन है इनके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ऐसे जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स के अपने अपने एक कैटेगराइजेशन है, एक क्लासिफिकेशन है, दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेनी ऑफ द फैक्टर्स व्हिच आर टू बी कंसीडर्ड। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑन अ वेरी एलिमेंट्री लेवल हम ये सोच सकते हैं कि जब वो पूरी तरह मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्ड लेवल पे या केमिकल लेवल पे जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो वो एक हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर अचीव कर लेता है, जिसको हम ग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। तो यूजुअली हमारे बहुत सारे एंजाइम्स ग्लोबुलिन्स हैं और बहुत सारे हमारे एंजाइम्स जो हैं वो मतलब एक कंसाइज कहना चाहिए बहुत ही क्लोज निट, जैसे बोलते हैं ना, क्लोजली प्लेस्ड मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन या फिर शेप बनता है जो हेल्प करता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को इंटरैक्ट करने के लिए। लेकिन वो जो प्लेसेस हैं, जो उनके कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्पेस शेप के कारण जो भी उनमें स्पेसेस बीच में क्रिएटेड रहती हैं, किसी में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले, किसी में लूप निकला हुआ है, तो ये जो शेप्स के बेसिस पे वो दूसरे एक मॉलिक्यूल के साथ में इंटरैक्ट करने की कंपैटिबिलिटी एस्टैब्लिश करता है। सपोज अगर ये मेरा हाथ ऐसा है तो जो दूसरा एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो इसके अंदर फिट हो सकता है, ऐसा यदि कोई मॉलिक्यूल मिलता है तो डेफिनेटली उसके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी हैज इवॉल्व्ड एंजाइम्स टू दैट लेवल वेयर सपोज वी हैव गॉट सबस्ट्रेट मतलब जिस पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं। सबस्ट्रेट तो हमारे पास आता है थ्रू खाना या फिर ऑलरेडी हमारे बॉडी में कुछ प्रेजेंट हो, तो ये सब सबस्ट्रेट तो पहले से अवेलेबल है। नाउ वी नीड टू डेवलप और इवॉल्व एंजाइम्स व्हिच कुड एक्ट अपॉन दीज सबस्ट्रेट एंड दे कैन एनहांस द टाइप ऑफ रिएक्शन और टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी व्हिच इज कैरिड आउट। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती थी जब हम छोटे एनिमल रहे होंगे, स्मॉल एनिमल्स, यानी कि इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से हम जब लोअर इवोल्यूशनरी लेवल के एनिमल्स रहे होंगे, तब हमने देखा होगा कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती थी। डिपेंडिंग अपॉन जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं तो उनमें कैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तब होती हैं जब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर वो बॉडी अचीव करती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ठंडा हो गया तो बॉडी टेम्परेचर भी कम हो गया, तो रिएक्शंस हो नहीं पाती थी। देन उन्होंने फिर दिस इज ऑल इवोल्यूशन, ये चेंज है, ये अडेप्टेशन है, ये हमने अपने आप को वेरिएट किया या चेंज किया ताकि हम एक बेटर ऑर्गेनिज्म बनते चले जाए। तो जब वार्म ब्लडेड आए तो उन्होंने हमेशा अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बराबर कैरी ऑन हो। और इसके लिए क्या है कि जैसे मैंने कहा कि सबस्ट्रेट हमारे पास पहले ही था, क्योंकि हम फीड करते हैं तो वी हैव इनफ सबस्ट्रेट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स का इवोल्यूशन शायद बाद में ही हुआ है। हालांकि पहले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे ही ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल क्या बोलते हैं इवोल्यूशन हुआ है, स्ट्रक्चर बदला है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन्स ओनली, अमीनो एसिड्स के बेसिस पे। आप लोगों ने इवोल्यूशन में पढ़ेंगे तो रेडिस का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ बताते हैं कि अमीनो एसिड्स कैसे क्रिएट हुए थे फर्स्ट टाइम, तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो कहने का मतलब ये है कि नाउ the highly evolved organisms have developed such kind of molecules which would enhance the metabolic activities, जो मॉड्यूलेट कर सकें उसको फास्टर वे में, ताकि हमारे रिएक्शंस जल्दी कंप्लीट हो, ताकि उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं जल्दी ही हमें दिखने लगे, ये रिजल्ट हमें जल्दी दिखने लगे। अभी सपोज करिए मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं उस तरफ से और आप मेरी बात को समझ भी रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर प्रोसेस कहीं ना कहीं हुई है। यू ऑल नो इट, कहाँ पे हुई है। हम सुन रहे हैं, सुनने के बाद वो
हमारे एमिलिया सिंकस स्टेप्स के थ्रू वो अंदर गए, अंदर परसीव हुआ, फ्रॉम देयर फिर आपने ऑडिटरी जो अपना नर्व है, नर्व के थ्रू ब्रेन पे गया, ब्रेन के बाद जाने के बाद इम्पल्सेस वहाँ पे एनालाइज हुए, एंड देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ आप उसको समझ रहे हैं। दिस ऑल यू नो, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस नीड्स टू बी फास्टेड है। इसको फास्ट जब तक नहीं करेंगे तो आपकी एनालिसिस जो है या फिर आपका जो उसका रिफ्लेक्स है या उसका रिएक्शन जो है वो देने में समय लगेगा। तो रिफ्लेक्सेस जो है, हम जो रिएक्ट करते हैं अबाउट एनी एक्शन, तो वो जो रिएक्शंस जो हैं उसको स्पीडन अप करने के लिए वी ऑलवेज नीडेड दीज एंजाइम्स, वी ऑलवेज नीडेड these type of molecules which could modulate the normal metabolic activities। और उसी के चलते हमारे एंजाइम्स इवॉल्व हुए, and now we have developed such kind of enzymes which would definitely fit those substrates which are available and which are like you know needed for our life। ऐसे ऐसे सबस्ट्रेट जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं, उन सबस्ट्रेट्स के अगेंस्ट के एंजाइम्स को हमने इवॉल्व किया है। अब ये एक अलग साइंसेस हो गई हैं, इवोल्यूशन के एस्पेक्ट्स में पढ़ते हैं लोग एंजाइम्स के। देखा गया तो ये हमें बहुत लेटर स्टेज में हमने आइडेंटिफाई करना शुरू किया। आपने एक सैंगर का भी नाम सुना होगा, उन्होंने इस एंजाइम के बारे में बताया था, हम बाद में पढ़ते हैं उसके, देखेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट जो फिटिंग, कॉन्फ़िगरेशनल फिटिंग की जो बात की थी, कॉन्फ़िगरेशनल फिटिंग की जो बात की थी, वो फिटिंग जो है स्लोली इवॉल्व हुआ है एंड हम उसी तरह के एंजाइम्स बनाना शुरू किए। और देखा जाए तो जब एंजाइम्स आइडेंटिफाई किए जाते थे तो उनको जो हम नॉमेनक्लेट करते थे, उनको जो नाम देते थे, वो भी हमने ऐसे नाम दिए कि वो उस रिएक्शन या उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से वो रिलेटेड रहा करता था। सपोज एक ए से लेकर वो बी बना रहा है तो हम बोलते थे ए बी, और एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास है ए एस ई लगा देते हैं हमारे एंजाइम के नाम के साथ। तो वो ए से बी बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं ए बी एस, है ना। या फिर सी से डी बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं सी डी एस। ये एक आसान तरीका था बिकॉज देयर वर सो मेनी एंजाइम्स। पहले सबके अलग अलग नाम थे, पहले वो अमीनो एसिड लेवल के बेसिस पे उनके नाम दिया करते थे। काइनेजेस आप नाम सुनेंगे, है ना, उसके बाद टायरोसिन नाम सुनेंगे। टायरोसिन तो आपको मालूम है कि अमीनो एसिड है। तो ये छोटे जो फेनिलएलानिन जो है, ये सब क्या ना अपने लेवल पे इन्होंने नाम देना शुरू कर दिए। फिर देन अभी नॉमेनक्लेचर में भी बहुत वेरिएशंस आ गए हैं। इनके नाम पहले 3 लेटर के हुआ करते थे, अभी 1 लेटर के नाम हो गए इनके। और उसके बाद फिर देखा जाए तो आज की तारीख में जो एंजाइम्स हैं, इतने सारे ढेर सारे एंजाइम्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। हालांकि हम ASE लगाते हैं उसमें, हर एक नया नाम देते हैं, तो हर एक दिन एक नया एंजाइम आइडेंटिफाई हुआ जा रहा है और वो डेटाबेस में सबमिट होता जा रहा है। तो इतनी बड़ी लिस्ट हो गई, तो नाउ एक नया नॉमेनक्लेचर भी चाहिए था, एक नया क्लासिफिकेशन भी चाहिए था, एंड वो उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन फिटिंग के ऊपर से उनकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ती है ये भी देखना चाहिए था। तो ये सब एस्पेक्ट्स पे ढेर सारा काम हुआ है। एंजाइम एक्टिविटी पे भी लोगों ने, देयर वाज अ टाइम इन यू नो मिडिल, जैसे बोलना चाहिए 60s से लेकर 90s के बीच में जितना रिसर्च हुआ है ना, वो यूजुअली इन्हीं पे हुआ है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, किसी भी चीज़ की एंजाइमेटिक एक्टिविटी को स्टडी करने की कोशिश की गई थी। नए नए एंजाइम्स भी आइडेंटिफाई किए गए थे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट वी वर नॉट नोइंग। तो ये एक बहुत बड़ी स्टडी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारे एंजाइम्स इकट्ठे हो गए हमारे पास। देन वी नीडेड टू क्लासिफाई देम आल्सो। फिर IPC ने ये जो कौन सा बायोकेमिस्ट्री वाला IUBAC, कौन है ये, इंटरनेशनल यूनियन फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, IUPAC क्या होता है, प्योर एंड एलाइड केमिस्ट्री। एंड बायोकेमिस्ट्री से क्या रिलेटेड है, एनीबॉडी? एक IUPAC है, प्योर एंड एलाइड केमिस्ट्री, वो नॉमेनक्लेचर में हेल्प करता है, वो कुछ गाइडलाइंस देता है, उसके बेसिस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई या फिर नाम देते हैं उसको। तो यही है शायद केमिस्ट्री से रिलेटेड ही IUPAC, या फिर बायोकेमिस्ट्री का भी कुछ ऐसा यूनियन है। आवाज नहीं है आपकी। एंजाइम कमीशन जो 1961
हाँ, ये तो बाद में एस्टैब्लिश हुआ। पहले कैसे था कि इनके नाम IUPAC के थ्रू ही अलॉट किए जाते थे। फिर मैं वही बोला, ढेर सारे जब जमा होने लगे, देन द नीड अरोज, जिससे कि हमें लगा कि नहीं, हमें इन्हें क्लासिफाई करना जरूरी है। देन वो क्लासिफिकेशन के तरीके बदले, फिर उन्होंने बोला फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। फिर फंक्शनैलिटी देखा गया तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो कितने टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कौन से फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये इस तरह से उन्होंने कुछ फंक्शंस के बेसिस पे, उनके एक्टिविटी के बेसिस पे, द टाइप ऑफ रिएक्शन दे मॉड्यूलेट, उनके बेसिस पे उनको हमने क्लासिफाई करना शुरू किया। विल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। और दूसरी बात, एक और चीज़ देखी गई है कि जिसे हम हमेशा कहते हैं कि ये मॉड्यूलेट करता है, एनहांस करता है, सॉरी या IUBMC, IUBMB, ओके। एनीवेज, यूनियंस तो बहुत हैं, नॉमेनक्लेचर यूनियंस क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे यूनियंस बने पड़े हैं। ऑफ कोर्स बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसने भी एक्सेप्ट किया हुआ है इन चीज़ को। सो ये बात हुई कब की? हाँ नहीं, वी वर ट्राइंग टू लाइक, हम एक्चुअली हम लाइक ओवरव्यू ले रहे हैं सब, है ना, हम अभी कोई ऐसे डेप्थ में किसी को पढ़ने नहीं जा रहे हैं आज। तो वे अब एक तो क्लासिफिकेशन की नीड आई थी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन ये कैरी आउट करते, तो उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। इट वाज क्लासिफाइड, एंड वो देखेंगे अपन की कैसे क्लासिफिकेशन हुआ था, कौन कौन से टाइप से। फिर देखा गया कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी करने के लिए वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे अलग अलग तरीके से परफॉर्म किए जाते थे, उनके सबस्ट्रेट अलग हुआ करते थे। तो ये इन सब के बेसिस पे फिर उन्होंने भी सब डिविजन्स करना शुरू किया, सब डिविजन्स भी करना शुरू किया। अब ये सब डिविजन करते करते पहले सिर्फ नाम के एंजाइम्स को क्लासिफाई किए, देन दे हैव स्टार्टेड, सी इफ आई discover some enzyme, I would name something which is like very familiar to me. या कोई अफ्रीकन होगा तो वो अपने तरीके से करेगा। तो देन टू अवॉइड एंड टू कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए या फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए दे हैव यूज सम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम फिर वो डिसाइड किया गया था एक कमीशन में, उसके थ्रू फिर वो नंबर सिस्टम के थ्रू और एंजाइम को आइडेंटिफाई किया जाता है। इट्स वेरी, वी वुड सी लेटर। अब जो मेन चीज थी जब वो ये था कि ये जो सबस्ट्रेट जो पहले से अवेलेबल था उसके अगेंस्ट में हमने एंजाइम्स को इवॉल्व किया है, यानी इनकी कंपैटिबिलिटी हमने बढ़ाई है। तो जो कंपैटिबिलिटी थी जिसको हम कॉन्फ़िगरेशनल बेसिस पे करते थे, वो जैसे अभी मैंने बात किया था कि अमीनो एसिड जब मिलते जाते हैं बहुत सारे बड़े हो जाते हैं तो उनमें डाइसल्फाइड लिंकिंग होती है या फिर कुछ और बॉन्डिंग होती है या फिर कोई और दूसरे स्टफ भी उससे मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट स्टफ मिल गया या फिर कहना चाहिए लिपिडिक स्टफ मिल गया या प्रोटीनेशियस स्टफ मिल गया। प्रोटीनेशियस तो खुद है ही वो, जैसे इनके मतलब लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स वाली कोई स्टफ उसके साथ अटैच हो गया है तो दे बिकम कॉन्फ़िगरेशन वाइज, वो मतलब शेप एंड साइज वाइज थोड़े से डिफर कर जाते हैं, एंड दैट हेल्प्स इन मेकिंग देम मोर कंपैटिबल विद सबस्ट्रेट। तो ये जो है वो एक लॉक एंड की मेथड जो इंट्रोड्यूस किया गया था कि हर एक स्टफ के लिए, हर एक सबस्ट्रेट के लिए वी हैव गॉट अ स्पेसिफिक कंपैटिबल कंपेनियन जिसको हम एंजाइम कह रहे थे, फिर उनको नाम देना शुरू किया गया। लेकिन अब कंपैटिबिलिटी जो है, जैसे मैंने कहा कि मॉलिक्यूल्स अपना कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे हमारे जो अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़ेंगे, जो बॉन्डिंग उनके बीच में क्रिएट है उसके हिसाब से उनके बीच में स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी है, राइट। अब वो स्ट्रक्चरल कंपैटिबिलिटी जो आ रही है वही हेल्प करता है उनको एक दूसरे से बाइंड करने के लिए एंड टू एनहांस द एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के बीच में एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दी जाए तो वो फास्ट अप हो जाता है, हैस्ट अप हो जाता है, ये जल्दी हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है। ये चीजों को ये केमिकली हमने मतलब कहना चाहिए ना, मैं इसलिए हमेशा कहता रहता हूँ आप लोगों को कि केमिस्ट्री छोड़ना नहीं, केमिस्ट्री को भूलना भी नहीं, क्योंकि विदाउट केमिस्ट्री आप लाइफ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। टू अंडरस्टैंड द लाइफ यू नीड केमिस्ट्री, एंड ऑफ कोर्स
to much extent you need physics also to understand the life. और बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी तो सिर्फ जो है पढ़ रहे हैं कि ये बाल है, नाक है, कान है, ये है, आंख है, नेल है, कान है, तो ये सब चीजें हम सिर्फ पढ़ जो है उसको जान रहे हैं. But to understand how they perform, how they function, how they stay, how they live, ये सब चीजों के लिए you need to understand chemistry and physics. Physics आपके मैकेनिकल पोर्शंस को एक्सप्लेन करता है एंड केमिकल पोर्शंस को एक्सप्लेन करने वाला आपका केमिस्ट्री है, जिसको हम आज बायोकेमिस्ट्री नाम से अलग से पढ़ते हैं. एनीवेज, तो ये जो लॉक एंड की मेथड वाला जो कंसेप्ट आया था, दैट वाज मतलब हाईली फिजिबल था. वो उसमें कोई फ्लॉस नहीं निकले थे, बट उसमें भी कुछ चीजें देखी गई कि कंपैटिबल होने के बावजूद भी समटाइम्स द रिएक्शंस आर नॉट कैरिड एज स्मूथली एज दे वर एक्सपेक्टेड. तो वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड इफेक्ट नजर ना आने पे जब और भी चीजें पढ़नी शुरू की गई और भी स्टडी करने की कोशिश की, तब पता चला कि समटाइम्स इन सम रिएक्शंस यू नीड सम अदर एसोसिएट्स along with the enzymes. तो एंजाइम्स के अलावा कुछ और एसोसिएट्स चाहिए रहते हैं जो उनको वो कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. तो वो जो कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करने वाले अलॉन्ग विद द एंजाइम्स, तो उसके लिए फिर हमने उनको फैक्टर्स बोलना शुरू किया, या फिर बोलना चाहिए को फैक्टर्स बोलना शुरू किया. अभी को फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं, इसके भी ढेर क्लासिफिकेशन है कि कोई आयोनिक हो सकता है, कोई इनऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक हो सकता है, या फिर कहना चाहिए कि ऑल टुगेदर वो एक आध प्रोटीन दूसरा छोटा सा प्रोटीन मॉलिक्यूल हो सकता है. या फिर अब तो इन सबको फिर जब स्टडीज होने लगी तो नाउ एंजाइम को भी डिफाइन करने की जरूरत पड़ गई, फिर से रीडिफाइन करने की. तो एंजाइम फिर रीडिफाइन होने लगे. समटाइम्स हम उसको प्रो एंजाइम्स के नाम से जानते हैं, फिर बोल रहे कि एपो एंजाइम्स के नाम पे जानने लगे, फिर कुछ होलो एंजाइम्स हैं, है ना. फिर वो अब क्या है और क्या है, ढेर सारे ऐसे हैं, एपो है, होलो है, और कोफैक्टर्स के एसोसिएशन के कारण उनके अलग अलग नाम होते हैं. तो ये सब चीज़ें जो है आपको ये पढ़ना है इसमें. और एक जो चीज़ें ऐड हुई हैं आपके सिलेबस में इस बार ऑल्टर करके, यानी कि रेक्टिफाई किया गया, करेक्शंस हैं आपके सिलेबस में, उसमें ये है कि एक मैकलिस-मेंटन नाम का एक इक्वेशन है जो ये बताता है कि ये एंजाइम और सब्सट्रेट के बीच रिएक्शन कैसे होता है, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन वैरी करता है, कैसे वो एंजाइम कॉन्फ़िगरली बाइंड करने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कैसे करता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाता है. तो ये एक मैकलिस-मेंटन का इक्वेशन है जो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे. उसका डेरिवेशन भी है शायद, वी मैक्स आपने कभी सुना होगा, तो शायद 11th में पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं. बट एनीवेज, तो ये सब चीज़ें हैं, हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में हम जब मिलेंगे तो वी विल जॉट डाउन वो जो फिजिकल और केमिकल जो कैरेक्टर्स है उसको एक बार वील जस्ट गो थ्रू इट, एंड देन फिर बाद में वो जो डेरिवेशन जो मैकलिस-मेंटन इक्वेशन जो है रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम एंजाइम काइनेटिक्स भी बोलते हैं. काइनेटिक्स मतलब मोशन, एंजाइम का जो काम करने का तरीका है उसके वो उनके जैसे क्या डायनामिक्स जिसको कहते हैं फिजिक्स के टर्म में. तो वो काइनेटिक्स मतलब वो एंजाइम मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं एंड हाउ दे मूव द रिएक्शन अहेड. तो ये सब चीज़ें भी थोड़ी सी पढ़नी है. अर्लियर वो आपके सिलेबस में नहीं था, बट उसके अलावा मैकलिस-मेंटन के अलावा आपको कुछ चीज़ें और भी देखनी है कि थोड़े से मतलब कहें जो फ्लॉ थे मैकलिस-मेंटन में, कुछ चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था. मैं बताऊंगा कौन सी चीज़ों को, क्योंकि देखा ये गया है कि आप यूजुअली आप बाहर लैब में जब बात करते हैं तो बोले कि आप एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए तो रिएक्शन बढ़ जाएगा. बट हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम में वो कंडीशन नहीं है. वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जब वो एंजाइम और सबस्ट्रेट जोड़ते हैं जब. तो ये कभी कभी ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इफेक्ट करता है किसी किसी रिएक्शन में, कभी कभी सबस्ट्रेट का लेवल इंक्रीज इफेक्ट करता है. लेकिन एंजाइम हमेशा देखेगा, मैं जैसे इसलिए बोलता था ऑल्टरेशन वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कम नहीं करता है. ये नॉर्मल तरीके से वो सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट से, तो वो अदर रिएक्टेंट से, तो प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा ही, बट एंजाइम उसे एनहांस करता है सो दैट इट कैन बी स्पीडन अप एंड आवर रेस्पॉन्सेस कुड बी मोर एफिशिएंटली डिलीवर्ड. एनीवेज, तो आज के लिए बस इतना ही. हम नेक्स्ट टाइम से फिर वो पॉइंट वाइज चलेंगे.
उसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि मैकलस-मेंटन इक्वेशन किसी किसी कंडीशंस में फुलफिल नहीं कर पाता, इक्वेशन जस्टिफाई नहीं हो पाता, तो देन उसके बाद दो चार और कर्व्स हैं, दो चार और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ और तरीके बताए थे। उसमें से एक है कुछ व्हाट वीवर, एक वीवर है, not getting the word, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में ऐड किया हुआ है, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। तो उसके लिए तो हम डिसाइड करेंगे जब सबके सब प्रेजेंट रहेंगे, उसी दिन वो वाली क्लास लूँगा, क्योंकि वो मेरे को डिराइव करना पड़ेगा यहाँ पे बोर्ड पे। तो यू ऑल वुड बी सीइंग कि हाउ वुड बी लाइक डिराइव इट and we conclude some inferences. Anyways, that's all for today. We'll meet on Sunday with एक जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ने, केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टर्स जो पढ़ने हैं उसके बारे में we'll discuss. Okay? आज के लिए बस इतना ही. Thank you.